شک ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ شک ہے؟ ہاں، کیونکہ ایکچولی میرے فادر چھوڑ گئے تھے جب ہم چھوٹے تھے. اچھا، تو اس وجہ سے تھوڑا سا فیملی پرابلمز ہیں پہلے سے ہی تھے. اب شادی کے بعد تھوڑا سا میں بھی بہت شکی اور اس طرح ٹائپ ہو گئی ہوں. ٹھیک، چلے آپ کے ہم سوال کا جواب دیتے. تھینک یو سو مچ مریم فار شیئرنگ یور ایشو وتھ اس، اینڈ انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ہیلپ کر سکیں. جی مریم صاحبہ لیٹ گو نہیں کر پا رہی. یہ تو مسئلہ ہے سارا. دیکھیں اس میں بھی ریلیکس نہیں کر پاتی نا. اب ہوتا کیا ہے، وہ شک اس کے ذہن میں پلتا ہے. ہسبینڈ آتا ہے، اس کا بیہیویئر ایک شکی بیوی کی طرح ہوتا ہے. ہسبینڈ ایکسپیکٹ کچھ اور کرتا ہے، بیہیویئر کچھ اور ہوتا ہے. تو پھر اگین وہ لوپ، ہسبینڈ بھی ریئیکٹ کرتا ہے اس کی ریئیکشن پہ، یہ اور ریئیکٹ کرتی ہے. ان کی ریلیشن شپ بہت ہی بٹر ہے. ٹھیک، اس ریلیشن شپ میں ریلیکس کرنا ہوگا ان دونوں کو. اور خاتون کو میں ایڈوائز کروں گا کہ اگر شک ایک بیماری کے طور پہ ہے تو شی شوڈ کنسلٹ اے گڈ ڈاکٹر، اے سائیکالوجسٹ، اے سائیکائٹرسٹ. گو ٹو دیٹ. شک کا ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے اور ہو سکتا ہے. اور اگر ان کو اس چیز کا احساس ہے کہ جی دس از فار مائی کڈز، یہ میرے بچوں کے لیے مجھے اپنے آپ کو ٹریٹ کرنا ہے، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک بہتر زندگی کے لیے کرنا ہے. تو انسان جب بیمار ہوتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، آپ دوائی کھاتے ہو نہیں کھاتے. تو یہ بھی ایک ذہن کا پرابلم ہے شک. اور ڈیفینیٹلی یہ بات ان کی صحیح ہے کہ فادر نہیں تھے تو انسیکیورٹی آتی گئی ہے. شی از انسیکیورڈ اباؤٹ دا ہسبینڈ. Do you think that any of the therapies will help her to detach her intensity of emotions with the father? ایک چیز تو یاد رکھیں کہ ایک چیز یہ ہو سکتی ہے. دیکھیں میں آفیشیل میں چاہوں گا کہ پراپر تھراپی ہو، مگر اگر نہیں کر سکتی تو اگر تمہیں یاد ہے ایموشنل ڈیٹیچمنٹ کے لیے 2 ایکسرسائزز ریلیکسیشن کے لیے بھی بہت اچھی ہے. ایک ہوتی ہے جس کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں بیٹھیں، لیٹنا نہیں ہے، کمفرٹیبل پوزیشن میں بیٹھیں. ریکلائننگ تھوڑی سی ریکلائننگ ہو مگر کمفرٹیبل پوزیشن ہو. اور آنکھیں بند کر کے آپ انہیل کریں، سانس لیں، مگر کاؤنٹ کریں کتنا لمبا سانس لے سکتے. لیٹ سے 4 تک آپ 4 سیکنڈ میں آپ سانس لیں. اور اس کے بعد روکے بغیر سانس کو 4 سیکنڈ میں ہی نکالیں. ٹھیک ہے، میں کروں انہیل ایکسیل. ہاں، سیم ہونا چاہیے. دیکھیں آپ ریکلائننگ پوزیشن میں ریلیکس کر کے بیٹھتے ہیں، اس طرح بیٹھیں گے، کسی طرح بھی ریلیکس بٹ لیٹیں گے نہیں. اینڈ آپ انہیل کریں گے جتنا آپ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کاؤنٹ کریں 4 سیکنڈ. چلے کرو. 1 2 3 ایکسیل. 1 2 3 انہیل. 1 2 3 ایکسیل. 1 2 3. سمپل. یعنی 3 سیکنڈ یا 4 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ میں آپ سانس لیں اور نکالیں اتنے ہی ڈیوریشن میں. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں امیزنگ یہ ہوتا ہے کہ بریتھ کا تعلق، سانس لینے کا جو عمل تنفس، اس کا تعلق بڑا گہرا آپ کے اعصاب کے ساتھ. ٹھیک. جب کوئی شخص ٹینس ہوتا ہے اس کی بریدنگ بڑی فاسٹ ہوتی ہے، پینک کے اندر بند ہو جاتی ہے بریدنگ، سانس لینا. اور جب بریدنگ کنٹرولڈ ہو، اٹ از ناٹ بریدنگ اونلی، اٹ از کنٹرول بریدنگ. آپ کانشیسلی اس بریدنگ کو کنٹرول کر رہے ہیں. کانشیسلی آپ کنٹرول کریں. اور ابو ہمیشہ بتاتے ہیں بریدنگ پراپرلی کریں. جو انہیل کرتے ہوئے آپ کا پیٹ باہر نکلنا چاہیے کیونکہ ہوا اندر جا رہی ہے. سو اٹس لائک دس. اینڈ دین ایکسیل کرتے ہوئے وہ ایسے ہی باہر ہے ہوا کے بنا بھی، لیکن ہوا کے ساتھ اور باہر نکل سکتا ہے. اچھا جی. ہاں اچھا، تو انہیل ایکسیل جو کہ آپ کنٹرول کر رہے ہیں، تو جیسے ہی آپ کنٹرول کرتے ہیں آپ کے اندر ایموشنل کنٹرول آنا شروع ہوتا ہے. ایموشنل کنٹرول آنا شروع کرتا ہے. دیکھیں ایک ابو مجھے بات بتاتے تھے ہمیشہ، وہ میں چاہوں گی کہ میں آپ سے شیئر کروں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے چینجز ہم مائنڈ سائنس کی تھراپیز میں کرتے ہیں. اکثر ہمارے پیشنٹس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ساؤنڈ میڈیٹیشن سے کیا ہوگا، جی پانی صبح اٹھ کے سورج سن بات لینے سے کیا ہوگا. ٹھیک ہے، سن کے جو اپنے باقی جو افیکٹس ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن ابو کہتے ہیں کہ اس سے ایک مائنڈ میں ایک فار ایگزامپل ایک مائنڈ ایک طریقے سے آپ کا پروگرام ہوا ہوا ہے. اب اس پروگرام کو آپ نے چینج کیا اور نئی پروگرامنگ میں ڈالنے کے لیے آپ یہ چھوٹی چھوٹی پریکٹسز کرتے ہو تو وہ آپ کے پورے ایٹیٹیوڈ کے اندر ایک چینج لاتی ہے. اسمال چینجز میکس بگ افیکٹ. اور اس میں دیکھیں کہ آپ نے کم سے کم 20 منٹ کرنی ہے. 30 منٹ آئیڈیل ہے، 20 منٹ کرنی ہے. اچھا، جن کو پینک اٹیک ہوتے ہیں، اینگزائٹی بہت رہتی ہے، ٹوائس اے ڈے دن میں کریں تو دے ول فائنڈ دوز پینک اٹیکس اینڈ اینگزائٹی بھی آہستہ آہستہ، بے چینی کہتے ہیں اینگزائٹی کو، وہ بھی کنٹرول ہو جائے گی. تو ایک بہت انٹرسٹنگ ہے. دوسری جو میں آج سکھانا، میں سکھاؤں کبھی کچھ بات کرنی نہیں کرے بات بیچ میں ہوتی رہی. ایک اور چیز ہے جو ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھی ہے، خاتون خانہ کے لیے بہت اچھی ہے، ایگزیکٹوز کے لیے بہت اچھی ہے، جو ٹیبل ورک بہت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹیبل ورک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر موومنٹ کم ہو جاتی ہے. ایک تو ایک چیز یاد رکھیں کہ ہر آدھے گھنٹے بعد، اگر نہیں تو چلو 1 گھنٹے بعد اپنی کرسی سے اٹھیں، اپنے روم میں ایک چکر لگائیں
और फिर वापस आके बैठे। तभी इसलिए आप घूमते फिरते रहते हो। घूमते फिरते रहता हूं। मैं कहूँ जब भी मैं बात कहती हूँ उठ क्यों जाते हैं और मैं कहती हूँ मेरी बात नहीं सुनते, ये वजह है। अच्छा जी, क्यों होता ही है कि अगर आप कुर्सी पे कुछ ज्यादा देर बैठेंगे तो ब्लड का जो फ्लो होता है वो स्लो डाउन हो जाता है, तो आपके जितने भी जॉइंट्स हैं वो अफेक्ट हो जाएंगे आप। अच्छा, आपके पास एक पेशेंट है तो उसके पाँव में नीचे वो था ब्लड क्लॉट्स बने हुए थे, तो हमने कहा ज्यादा देर बैठे, उसने कहा मैं पूरा दिन बैठा हूँ, सॉक्स पहन गया। सॉक्स पहन गया। तो देन यू आस्क हिम, हर आधे घंटे बाद, आधे नहीं चलो 1 घंटे के बाद सिर्फ उठो, अपने कमरे में एक चक्कर मारो, फिर आके बैठ जाओ, फिर काम करो, फिर चक्कर। अच्छे से 2 फायदे होंगे, एक जो काम कर रहे हो उससे ध्यान हटेगा, और दूसरा बॉडी के अंदर सर्कुलेशन शुरू हुआ, फिर वापस आके बैठ गए। अच्छा चलिए, मैं एक मजे का सवाल आपसे पूछती हूँ। मजे का सवाल थोड़ा सा मैं शायद उसको नहीं बता सकूं, लेकिन आप समझ जाना जैसे भी होता है। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि एक तो हम बात करें अपने स्ट्रेस की जो हमें होता है अभी, ठीक है, एक स्ट्रेस होता है हमारे ऑर्गन्स का स्ट्रेस, यू नो, हार्ट हमारा ज्यादा बीट करता है, कम बीट करता है, या सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ज्यादा ब्लड गाढ़ा है तो ज्यादा पंप करना पड़ता है, वट एवर। तो जो स्ट्रेस बॉडी को, ऑर्गन्स को होता है, वो स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं? क्या उसके लिए मेडिटेशन जरूरी है? मेडिटेशन तो जरूरी है, मेडिटेशन पे भी आऊंगा। एक और चीज मैं अभी सिखा रहा हूं, उसे ऑटोजेनिक ट्रेनिंग कहते हैं। ऑटोजेनिक ट्रेनिंग, ठीक है। और ये बाहर बड़ी मशहूर है, और टेबल वर्क करने वाले या जो लोग जहन ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बड़ी फायदेमंद है। उसका तरीका ये है कि 1 दफा मिनिमम और मैक्सिमम 2 या 3 दफा दिन में लाई डाउन। इवन आप अपनी ऑफिस में फर्श पे लेट जाएं, लाई डाउन इज इंपॉर्टेंट। इसमें लाइंग डाउन लेटना जरूरी है, नहीं कर सकते रात को कर लें। लाई डाउन करने के बाद जरा सा अपने पैरों को खोलें, फेस आपका आसमान की तरफ, छत की तरफ होना चाहिए, और हाथों को जरा अपने जिस्म से दूर रखें, और हाथ आपके यूं होंगे, इस पोजीशन में होंगे, यानी आपके लेग्स यूं होंगे, लेग्स पार्ट होंगे थोड़े से, और हाथ भी थोड़े से दूर होंगे। उसके बाद सबसे पहले आप ये करेंगे कि अपने पंजे जो हैं टोस को, उसको आप स्ट्रेच करें और टेंस करें, और फिर छोड़ दें। यानी स्टार्टिंग फ्रॉम योर टोज स्ट्रेच करें या टेंस करें और फिर एकदम से छोड़ दें, जैसे किसी ने छोड़ दिया एकदम से। इसी तरह आप अपने काव्स मसल्स हैं, पिंडलियां हैं, उसके मसल्स को आप टेंस करें और छोड़ दें। ठीक। कई दफा कुछ चीजें ऐसी होती है, आप स्ट्रेच करते हैं फिर फ्लेक्स करते हैं, टोस को स्ट्रेच किया फिर यूं किया, उसको फ्लेक्स कहते हैं, और फिर एकदम से छोड़ दिया। इसी तरह काफ मसल्स हैं आपकी पिंडलियां, उसको टेंस करें और फिर छोड़ दें। ठीक। अच्छा, इसी तरह घुटने और थाइज आ गए, इनको टेंस करें और फिर छोड़ दें। ठीक है। स्टमक को टेंस करें, हिप्स को, बटक्स को टाइट करें एकदम से और फिर छोड़ दें। ठीक है। फिर टाइट करें 5-5 मरतबा, हर चीज को 5-5 मरतबा टेंस करें और फिर एकदम से रिलैक्स करें, फिर टेंस करें, फिर रिलैक्स करें, फिर स्टमक की तरफ आ जाएं। जिन जिन मसल्स पे आपका वॉलंटरी कंट्रोल है और आप उसको टेंस कर सकते हो, उसको टेंस करो और फिर छोड़ो, फिर टेंस 5-5 मरतबा। देखिए ना, ये है ना, हाथ आपका है, देखिए मुट्ठी है ना, अपनी टेंस किया ऐसे और फिर छोड़ दिया, फिर टेंस किया, लाइक फेस को, फिर फेस को किया आपने, फिर छोड़ दिया, फिर छोड़ दिया, इस तरह। ऐसे फेसेस, तो ऐसे फेसेस डर जाना डरे आप लोग। होगा ये कि अगर आप इसको करोगे 5-5 मरतबा, तो आप जब छोड़ते हो टेंशन को, तो दिस इज नॉट ओनली आपको फिजिकल ऑर्गन्स को रिलैक्स करता है, क्योंकि सारे ऑर्गन्स कनेक्टेड है। इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये होती है कि आपको छोड़ने की आदत पड़ती है, लेटिंग गो की आदत पड़ती है। देखिए, ये भी अगेन एक ट्रेनिंग का हिस्सा है कि आपकी माइंड की भी ट्रेनिंग होती है। हमारे साथ ख्वाजा कलीम साहब है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? डॉक्टर मोहित साहब को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? डॉक्टर साहब बिल्कुल बहुत अच्छा बता रहे हैं आप। मेरे भी थोड़े से जो पीछे गर्दन के पीछे पट्टे हैं, जी जी, ये अक्सर मेरा, क्योंकि मैं लिखने का काम करता हूँ ज्यादा, तो उसकी वजह से मेरे कोई रात को जब सोता हूँ तो अक्सर वो बहुत खिंचाव होता है उसके अंदर। ओके, तो उसके बारे में थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताएं। ये चीज मेरी वाइफ के साथ कंडीशन है, उसके लेफ्ट वाला कंधा तो बिल्कुल नहीं चलता। ओके ओके, चले मैं साइकिल का थोड़ा सा मसला है, उसके बारे में थोड़ा सा ठीक है, चले। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, पहले तो इनके पट्टों में दर्द रहता है और वाइफ का फ्रोजन शोल्डर है। एंशिएंट थेरेपी, पुराने जमाने की जो थेरेपियां थी, उसमें हॉट वाटर बैग रखी जाती थी, गर्म पानी की थैली रखते थे, वो बड़ा रिलैक्स करती थी, तो वो रखी जा सकती है। दूसरी चीज ये है कि योगा के अंदर एक पोस्चर है, 2-3 पोस्चर, एक कोबरा कहते हैं, एक को लोकस्ट पोज, हाफ लोकस्ट पोज कहते हैं, एक को फिश पोज कहते हैं। ये 3 एक्सरसाइज अगर डेली करें तो ये यहां से मसल्स के जो टेंशन है, स्पाज़म में जो रिलीज हो जाएगा। एक और काम हम कर सकते हैं, हम आपको एक्सरसाइज करके दिखा सकते हैं। कोबरा अभी ना मैं जिस वक्त करके दिखा सकते, तो आप इंटरनेट पे जाके कोबरा पोस्टर सर्च कर लें, या फिर डॉक्टर मोइस की वेबसाइट है moisan.com, उस पर कल तक ये पिक्चर्स अपलोडेड होंगी, तो आप उस पिक्चर्स को। और एक और चीज भी मैं बताना चाहता हूँ, हमारे हेल्थ टेलीविजन के
तमाम प्रोग्राम्स देखने वाले, बहुत सारे डॉक्टर ऑनलाइन और पता नहीं क्या क्या प्रोग्राम्स होते हैं, उन तमाम लोगों के लिए हम एक काम ये कर सकते हैं कि हमारे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक है जिसे एक्यूप्रेशर कहते हैं। उसके चार्ट हमारे पास अवेलेबल है। आपके पेट में दर्द है, यहां पे एक स्पॉट है, उसको आप 2 मिनट ऐसे पंप करें, आपके पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। कमर में दर्द है, ये पोर्शन है, यहां पे है। थायराइड आपका इनएक्टिव है, इधर प्रेस करेंगे पता चल जाएगा, आपको पेन होगा। तो उन कौन कौन सी जगह है, किस पॉइंट को आपने प्रेस करना है, उसके चार्ट्स अवेलेबल हैं। आप हमें ईमेल भेज दें या डॉक्टर मोइज, नहीं, आप वेबसाइट पे चले जाए, वेबसाइट पे चले जाए, वहां से डाउनलोड कर लें। पीडीएफ फॉर्मेट पे होगी, वहां पे आप डाउनलोड कर लें, तो वो आपके लिए इजी होगा, आपको इजी अप्रोचेबल भी होगा। और इन्होंने और एक और चीज भी बता दूं, आज हमने मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, मैं समझाता था, वो हमारे आईटी मैनेजर साहब ने निकाल दिया था। तो आज मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट वेबसाइट पे आ गया है, लोगों ने टेस्ट भी लिए और रिजल्ट भी भेजना शुरू कर दिया। रिजल्ट भी भेजना शुरू कर दिया। अब इनामात तो मैं नहीं बांट रही इस रिजल्ट पे, ये ऐसे रिजल्ट नहीं है जिससे मैं इनामात बांटू, लेकिन आपके रिजल्ट्स डॉक्टर मोइज के पास हैं, और अगर उनको कोई ऐसी बात आपको बतानी होगी तो वो आपको बता देंगे, डोंट वरी अबाउट इट। और इन्होंने आपको अपनी बॉडी के बहुत सारी बॉडी के ऑर्गन्स के बटन्स बता दिए हैं। बटन्स बता दिए। ये बटन्स आपकी बॉडी के, अक्सर अब वो कहते हैं कि लाइट कहीं और है, बटन ये रहा। तो जहां भी आपकी बॉडी में, एक्यूपंक्चर जो है उसके अंदर बहुत सारी बीमारियां होने का खतरा होता है, बिकॉज नीडल्स यूज होती है उसके अंदर। तो नीडल से अंदर कोई भी ऐसी बीमारी, नीडल चूंकि बहुत बारीक होती है, तो ये जो एनर्जी के चैनल्स है जिनको चाइनीज मेरिडियंस कहते हैं और योग इसे नादी कहता है, ये बहुत बारीक होते हैं। जब आप अंगूठे से प्रेस करते हैं तो बहुत बड़ा एरिया कवर कर रहे हैं, मगर जब पिन डालते हैं तो एक तो बहुत छोटी जगह होती है, दूसरा इन्फेक्शन के खतरे, एड्स का खतरा है। तो मेहरबानी करके एक्यूप्रेशर जरा सा ठीक नहीं है। एक्यूपंक्चर ठीक नहीं, एक्यूप्रेशर ठीक है। प्रेशर मीन्स पुश, प्रेशरिंग सम पॉइंट, एंड पंचर मीन पंचरिंग द नर्व, राइट, नर्व। लेकिन वो अगेन बहुत ज्यादा अगर आपको जाना है तो चाइना से करा के आए, वरना यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे साथ अब्दुल जमान साहब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। जी कहिए। अल्लाह ठीक का ठाक। शुक्र। जी दूसरा तो डॉक्टर साहब से एक सवाल है कि जी, मेरा जी। बेटा है 18 साल का, ठीक है। वो इंटर में है, लेकिन पढ़ाई में कोई शौक नहीं। तो एक तरह से सब बच्चे जब समाज हो जाते हैं तो वालिदैन को बहुत ही खुशी महसूस होती है। तो एक तरह से एज ए मौजूद ये समझ लें कि आदमी रिलैक्स फील होता है कि जैसे कि दूसरे बच्चे जा रहे हैं लेकिन ये नहीं जा रहा। एक तो प्रॉब्लम सर ये है। और दूसरा सर आपसे ये पूछना था आपके अपॉइंटमेंट्स और टाइमिंग्स का और एड्रेस ऑफ क्लिनिक पर। तो मुझे अपने आप को भी सर कल मैंने एग्रोफोबिया वाली सवाल किया था सर आपसे। जी तो ठीक है। मुझे अपने आप को भी दिखाना है और बेटे को भी आपसे एक दफा मिला लूँ। ठीक है, तो इसकी थोड़ा सा मुझे गाइडलाइन दे दीजिएगा सर। चले। थैंक यू सो मच अब्दुल जमान साहब फॉर योर कॉल। एंड जहां तक इनसे अपॉइंटमेंट की बात है, तो आखिर में शो के एंड में जब इनका चल रहा होता है, जिसमें कहानी या कोई बात आपको दे रहे होते, बता रहे होते हैं, जब आपको थॉट ऑफ द डे ही कहूंगी, थॉट ऑफ द प्रोग्राम, तो उसके एंड में नंबर चल रहा होता है 0345822111। वहां पे आप कॉल करके प्लीज अपॉइंटमेंट के लिए रुजू कर सकते हैं। वो एड्रेस वगैरह आपको सब समझा देंगे, अपॉइंटमेंट भी दे देंगे। एंड आप अपने बेटे के साथ जरूर आए, इंशाल्लाह विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। अच्छा जी, बेटा 18 साल का इनका, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं, आवाज मुझे नहीं आ रही थी। पढ़ाई में इंटरेस्ट। अच्छा, ये आज भी 2 केसेस ऐसे आए थे। अक्सर इन बच्चों से जब पूछा जाता है, वो पता है प्रॉब्लम, तो वो कहते हैं कंसंट्रेशन नहीं है। अच्छा, मैं कहता हूं अच्छा तो किस चीज में कंसंट्रेशन है? वीडियो गेम्स में बड़ा है, एसएमएस में बड़ा कंसंट्रेशन है, कंप्यूटर पे घंटों बैठे रहते हैं, फेसबुक पे घंटों बैठे रहते हैं, परफेक्ट कंसंट्रेशन। बेसिकली इंटरेस्ट नहीं होता पढ़ाई में। अब इंटरेस्ट पैदा करने के लिए बच्चे के साथ बैठकर वालिदैन को पहली चीज टाइम देना पड़ेगा, बिठाना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा, बेटा तुम्हारी जिंदगी में ख्वाहिश क्या है? एक सवाल अक्सर आप बच्चों से पूछें और कोशिश करें कि वो जवाब दे कि बेटा वेयर डू यू सी योर सेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ ऑन? आज से 5 साल के बाद आप अपने आप को कहां देख रहे हो, किस जगह देख रहे हो? ठीक। अच्छा, अब जब बच्चे मालूम करें कि उसके जहन में सोच क्या चाहता है वो। कई दफा बच्चा प्रेजेंट के अंदर स्ट्रगल कर रहा होता है, फंसा होता है, तो वो मालूम करें, इसके लिए टाइम स्पेंड करें और बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करके उसके दिल की बात मालूम करें और उसको कॉज को मालूम करें, जिसकी वजह से कॉज को मालूम करें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को पढ़ाई कर भी बहुत रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आए, तो प्लीज उसकी साइको एनालिसिस के लिए जाए। हो सकता है उसकी इंटेलिजेंस पढ़ाई की तरफ ना हो सकता है क्रिएटिविटी की तरफ हो, तो प्लीज उस पर भी ध्यान दें, बच्चों पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर ना दें। हमारे साथ एक कॉलर है, रिजवान साहब। अस्सलाम वालेकुम। कामरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, अपने टीवी का वॉल्यूम स्लो कर दिए। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था जी कहिए।
وہ یہ کہ رات کو نیند کا پرابلم ہے تو کوئی ریلیکسیشن کی کوئی ٹپ ہو تو بتا دیں پلیز. اوکے چلیں ٹھیک ہے، آپ کو ہم بھی بتا دیتے ہیں، چھوٹی سی ٹپ دے دیتے ہیں، دے دیں ان کو ٹپ آپ. ٹپ دے دوں.